میں آپ کو شہزاد ٹیک چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عثمان، فاؤنڈر آف فیلکون ٹیم، اور میں آج آپ کو انٹروڈکشن دوں گا ای بی ایل پاکستان کا۔ ای کامرس کی فیلڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے بیس کرتا بزنس پروجیکٹ ای بی ایل پاکستان، جس کا ویب ایڈریس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ای بی ایل پاکستان ایک ایف بی آر رجسٹرڈ کمپنی ہے جو کہ ایک ہیڈ آفس اور ایک ویب سائٹ کے تھرو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ اس بزنس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کسی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کام ایک پرچیزنگ سے شروع ہوتا ہے جو زندگی میں ایک دفعہ آپ کو اپنی پاکٹ سے کرنی ہے اور لائف ٹائم اس بزنس پروجیکٹ کا حصہ بن جانا ہے۔ اگر آپ ممبرشپ کارڈ چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے 850 یعنی 850 پے کرنے ہوں گے۔ ممبرشپ کارڈ دراصل ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے جس سے ایک سال آن لائن شاپنگ پر 30% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اور اگر آپ ٹینجیبل پروڈکٹس میں سے کچھ بائی کر کے اس پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ پرائسز ہیں جو آپ آن لائن ای سٹور میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹینجیبل پروڈکٹس میں روزمرہ استعمال کی عام پروڈکٹس ہیں جو آپ اکثر اوقات مارکیٹ سے پرچیز کرتے رہتے ہیں، لیکن بدلے میں کوئی اپرچونٹی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن یہی پروڈکٹ جب آپ کمپنی کے آن لائن ای سٹور سے پرچیز کرتے ہیں تو پروڈکٹ کے ساتھ لائف چینجنگ ارننگ اپرچونٹی بھی ملتی ہے۔ ای بی ایل پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر کام کرتے ہوئے آپ ایک دن کے 300 روپے سے 3600 روپے تک کما سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہینڈسم انکم ہے، اور وہ بھی پارٹ ٹائم کام کرتے ہوئے۔ کمپنی آپ کی ارننگ روزانہ کی بیسس پر پے کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کا آج کا پروفٹ آج ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے ممبرشپ کارڈ خریدا یا کمپنی کے آن لائن سٹور سے پرچیزنگ کی، پرچیزنگ کے ساتھ ہی آپ کو ای بی ایل پاکستان ویب سائٹ پر ایک اکاؤنٹ کی صورت میں ورچوئل آفس مل جاتا ہے۔ اس آفس میں آپ کے پاس لیفٹ اور رائٹ دو سائڈز ہیں۔ آفس کے ساتھ کمپنی ایک ارننگ پلان بھی دیتی ہے۔ کمپنی کہتی ہے کہ آپ 1 لیفٹ 1 رائٹ جیسے ہی کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو 200 روپے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ 1 لیفٹ اور 1 رائٹ کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنا آن لائن اکاؤنٹ حاصل کرنے کے بعد آپ کو یہ پروجیکٹ اسی طرح اپنی جان پہچان کے لوگوں میں شیئر کرنا ہے جیسے آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اور اپنی ہی طرح کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل کرنا ہے جو آپ ہی کی طرح تھرڈ کوارٹرنٹ میں شامل ہو کے ایک بزنس مین بننا اور ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مسٹر اے کو اپنے لیفٹ سائڈ پر اور مسٹر بی کو اپنے رائٹ سائڈ پر انٹروڈیوس کروایا۔ مسٹر اے اور مسٹر بی نے اپنی مرضی سے پرچیزنگ کی اور اپنا ای بی ایل اکاؤنٹ حاصل کیا جیسے آپ نے حاصل کیا تھا۔ اس طرح ایک ممبر آپ کی لیفٹ سائڈ پر اور دوسرا ممبر آپ کی رائٹ سائڈ پر موجود ہے، جس سے آپ کا 1 لیفٹ اور 1 رائٹ میچنگ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کیلکولیشن کے حساب سے 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر 200 روپے ملنے چاہیے، لیکن کمپنی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پہلے 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر پورے 300 روپے ٹرانسفر کر دیتی ہے، اور اس سٹیپ کا نام ہے بونس سٹیپ۔ یعنی کمپنی پہلے 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر 300 روپے اور اس کے بعد ہر 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر 200 روپے کے حساب سے انکم پے کرتی ہے۔ وہ لوگ بھی کچھ نئے لوگوں کو اس بزنس میں شامل کریں گے، جیسے کہ مسٹر سی اور مسٹر ڈی کو مسٹر اے نے شامل کیا اور مسٹر ای اور ایف کو مسٹر بی نے شامل کیا۔ ایسا کرنے سے مسٹر اے اور مسٹر بی نے اپنا 1 لیفٹ اور 1 رائٹ کمپلیٹ کیا اور اپنے بونس سٹیپ حاصل کیے، اور اس طرح آپ کی ڈاؤن لائن میں مزید 2 لیفٹ اور 2 رائٹ لوگ آ گئے، جس سے آپ کے بھی 2 نئے پیئرز یا بائنری کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ لائے تھے مسٹر اے کو اور مسٹر بی کو۔ جیسے ہی مسٹر اے نے اپنے 2 فرینڈز اور مسٹر بی نے اپنے 2 فرینڈز کو متعارف کروایا، کمپنی نے مسٹر اے کو بھی 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پر 300 روپے بونس سٹیپ پے کر دیا، اور مسٹر بی کو بھی بونس سٹیپ پر 300 روپیہ پے کر دیا۔ یعنی کمپنی ہر نئے آنے والے شخص کو پہلی دفعہ اپنا 1 لیفٹ اور 1 رائٹ کمپلیٹ کرنے پر 300 روپے پے کرتی ہے۔ مسٹر اے اور مسٹر بی کا پروفٹ بونس سٹیپ کی صورت میں 300 روپیہ آپ پہلے ہی ریسیو کر چکے ہیں۔ ان کے بعد 2 لوگ آپ کے لیفٹ سائڈ پر اور 2 لوگ آپ کے رائٹ سائڈ پر آ چکے ہیں، جس سے آپ کے 2 نئے پیئرز یا بائنری کمپلیٹ ہو جائیں گے،
और आपको इनके स्टेप रिवार्ड्स 200 रुपए भी साथ साथ मिल चुके होंगे। जैसे ही मिस्टर सी ने आगे एक दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाया और राइट साइड पर मौजूद मिस्टर एफ ने एक दोस्त को शामिल किया, जिससे आपका 1 लेफ्ट और 1 राइट मैचिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो वादे के मुताबिक आपको स्टेप रिवार्ड 200 रुपया रिसीव हो जाएगा। अब आप एक सिस्टम बना चुके हैं और ये वो स्टेज है जहां आप कह सकते हैं पीपल्स वर्क फॉर यू। काम मजीद आगे बढ़ता जा रहा है और आपकी डाउन लाइन में मौजूद लोग आपकी मदद से अपना 1 बाय 1 कंप्लीट करते जा रहे हैं। आपकी लेफ्ट और राइट साइड पर 1 बाय 1 की मैचिंग कंप्लीट होने पर आपको 200 रुपए रिसीव होते जा रहे हैं। अब आपका बनाया हुआ सिस्टम और भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आपके साथ साथ आपके सिस्टम में शामिल होने वाले लोग भी प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। ईबीएल पाकिस्तान हमारे रेगुलर कमीशंस के साथ सेविंग्स का भी ख्याल करती है। कंपनी 100 बाय 100 तक हर पेयर पर 200 रुपया और 100 बाय 100 के बाद हर पेयर पर 100 रुपया ट्रांसफर करती है और बाकी का जमा होता रहता है जो आपको स्टार लेवल पर जाकर इकट्ठा मिल जाता है, या आप इसे किसी भी वक्त कंपनी के ऑनलाइन ई स्टोर से शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर के लिए फर्ज करें आपने मिस्टर अली और मिस्टर बाबर को इंट्रोड्यूस करवाया। मिस्टर अली ने आगे बहुत अच्छे से अपनी टीम बनाई और इसे लीड किया, लेकिन मिस्टर बाबर अपने एग्जाम्स या शादी में बिजी हो गए और उन्होंने इस काम पर कोई तवज्जो नहीं दी। मिस्टर अली एक साइड पर 20 और दूसरी साइड पर 27 लोगों की टीम बना चुके हैं। 20 बाय 20 की मैचिंग पर मिस्टर अली 4000 रुपए कमा चुके हैं। मिस्टर अली आपके बाद में आए और उन्होंने 4000 रुपए कमाए और आप मिस्टर अली से पहले आए लेकिन आपने कमाए सिर्फ 300 रुपए, जो कि आपने 1 बाय 1 पूरा करने पर हासिल किए थे। यानी इस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि पहले आने वाला शख्स ज्यादा कमाता है और बाद में आने वाला शख्स कम। जो काम को समझकर और सीखकर करता है वो अर्न करता है। आप मिस्टर बाबर को बगैर बताए डायरेक्ट अपने रेफरेंस की एक साइड पर एक शख्स को ज्वाइन करवा दें। अब वो न्यू शख्स आगे वर्किंग करता है और वो रुकी हुई साइड आगे बढ़ती चली जाएगी और आपके रुके हुए कमीशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बिजनेस कहीं पर भी नहीं रुकता, जहां रुक सकता था वो आपको बता दिया और उस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है ये भी समझा दी। अब प्रेजेंटेशन के आखिरी हिस्सा में आपको प्रोजेक्शन प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ और अब आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट क्यों कहते हैं कि लाइफ चेंज करनी है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। जब आप इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं तो वर्किंग के लिए आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड मिलती है। फर्ज करें आपको इस बिजनेस में शामिल होने के बाद 30 डेज का टाइम दिया जाए कि आप अपने 2 दोस्तों को शामिल करके अपना बोनस स्टेप हासिल करें। 30 डेज वाली कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है। हम एक फर्जी टाइम सेट कर रहे हैं और आपके साथ शामिल होने वाला हर शख्स भी अपनी ज्वाइनिंग के बाद सेम आपकी तरह ही 30 डेज में अपने हिस्से के 2 मेंबर ज्वाइन करवाता जाए। तो 1 साल बाद आप किस लेवल पर होते हैं आए देखते हैं। आपने ज्वाइन किया और 30 डेज में अपने 2 फ्रेंड्स ए और बी को शामिल किया। अब ए और बी भी आप ही की तरह 30 डेज में अपने 2 दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आपके सेकंड मंथ में आपके ट्री में 4 नए लोग शामिल हो गए। आपका थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ तो उनका अभी फर्स्ट मंथ है और जब उन 4 ने अपने अपने 2 फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाया तो थर्ड मंथ में आपकी डाउन लाइन में 8 नए लोग शामिल हो गए और जब इन 8 ने भी अपने आने के बाद फर्स्ट मंथ में अपने 2 न्यू साइन अप करवा के अपना बोनस स्टेप हासिल किया तो आपका 4th मंथ है और आपके ट्री में 16 न्यू ज्वाइनिंग्स हो गई। आपका 5th मंथ स्टार्ट हुआ तो 16 की 2 ज्वाइनिंग्स की वजह से 32 लोग आपकी डाउन लाइन में आ गए। 6 मंथ में 64 न्यू लोग ज्वाइन हो जाएंगे। 7 मंथ आया तो 128 न्यू मेंबर शामिल हुए। 8th मंथ आया तो 256 न्यू मेंबर आए। आपका 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो 512 नए लोग आए। इनमें ऊपर वाले ऐड नहीं हैं। 9 मंथ में 512 ने जब 30 डेज में अपना 1 by 1 कंप्लीट किया तो आपका 10 मंथ था और आपके ट्री में 1024 न्यू लोग शामिल हो चुके हैं। 11 मंथ में 2048 और 12 मंथ में 4096।
और अगर इन सब को जमा कर दें तो 12 मंथ में तकरीबन 8,000 लोग आपके बनाए हुए सिस्टम में शामिल हो चुके हैं, जो काम तो अपने लिए कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा आपको भी होता है। और ये वो लेवल है कि पीपल्स वर्क फॉर यू। अब आप एक ऐसा सिस्टम बना चुके हैं जहां आपके लिए मोर देन 400 आवर्स काम होता है, और आप थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से एक बिग बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। इन 8,000 में से 4,000 आपके लेफ्ट हैंड साइड पर और 4,000 आपके राइट हैंड साइड पर। कंपनी के वर्किंग प्लान के हिसाब से 100 बाई 100 के बाद हर पेयर पर 100 रुपया मिलता है, 2 बाई 2 पे 200 और 4 बाई 4 पे 400 रुपया बनता है। और जब आपका काउंटर 4,000 बाई 4,000 है, फार्मूले के मुताबिक जितने पेयर्स उतने 100, तो आपने 4,000 से 4 लाख रुपए अर्न कर लिए। आपसे नेक्स्ट स्टेप पे मौजूद हर शख्स ने 2 लाख अर्न किए, और उससे नेक्स्ट स्टेप पे मौजूद हर शख्स ने 1 लाख अर्न किए, और सबसे नीचे जो लोग अभी शामिल हुए हैं उन्होंने भी 2-2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने भी अपना बोनस स्टेप 300 रुपया हासिल कर लिया। और यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि 1 साल के बाद 8,000 लोगों में से 50% लोग ड्यू टू एनी रीजन काम नहीं करते, तो आपके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर 2,000 बाई 2,000 लोग बचे हैं। इनके भी अगर 50% लोग एक्टिव हो जाएं और रोजाना की अपने साथ सिर्फ एक एंट्री कर दें, तो 1,000 लेफ्ट और 1,000 राइट डेली लोग आपके सिस्टम में शामिल हो रहे होते हैं। और फार्मूला के हिसाब से जितने लेफ्ट और राइट मैचिंग उतने 100, तो आपका एक दिन का प्रॉफिट बनता है, यानी 1 लाख रुपया। यकीनन ये बहुत ज्यादा है, और इसीलिए कंपनी कहती है कि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आपको एक दिन का मैक्सिमम 3,600 रुपया मिलता है, बाकी का कंपनी के पास जाता है जिसमें वो बाकी के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ हम मजीद वर्स कंडीशन को भी फर्ज कर लेते हैं कि अगर 70% लोग काम करना छोड़ देते हैं, तो क्या कंपनी या हम नुकसान में जा सकते हैं? और अगर 8,000 में से 80% लोग काम करना छोड़ देते हैं, और अगर 90% लोग काम ना कर रहे हों, अगर हम फर्ज करें कि 99% लोग 99% लोग काम नहीं कर रहे और सिर्फ 1% 1% एक्टिव हैं, तो ये 1% लोग 5, 10 या 20 नहीं, सिर्फ एक एंट्री अपने साथ एक दिन की लगा देते हैं, तो 40 लोग लेफ्ट साइड पर और 40 लोग राइट साइड पर रोजाना नेटवर्क में शामिल हो रहे होते हैं। कैलकुलेशन के मुताबिक जितने पेयर्स उतने 100, तो 40 बाई 40 पर 4,000 रुपया आपका एक दिन का प्रॉफिट बनता है। क्या ये सारा मिल जाएगा? नहीं, एग्रीमेंट के मुताबिक 3,600 रुपया आपको मिलेगा और बाकी का कंपनी के पास। द मोस्ट वर्स्ट कंडीशन में भी आप पर डे मैक्सिमम लिमिट तक अर्न कर रहे होते हैं। ये है वो सिस्टम जिसमें आप रेस्ट पे हो या लीव पर, फिर भी आपका लगाया हुआ काउंटर आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा होता है। इसलिए हम अर्निंग के लिए थर्ड क्वाड्रेंट का इंतखाब करते हैं। अगर कोई शख्स इतना भी नहीं कर सकता, तो वो सारी जिंदगी किसी न किसी की मुलाजमत करता रहेगा, सारी जिंदगी अपने ख्वाबों को गला घोंटता रहेगा। पहले अपने माँ बाप की आंखों में हसरत देखेगा कि वो कुछ ख्वाहिश करें और वो उसे पूरा ना कर सके, फिर अपने बीवी बच्चों की आरजुओं का गला घोंटेगा, तब तन्हाई में बैठ के रोएगा जब माँ बाप दुनिया से गुजर जाएंगे। तब कोसेगा अपनी किस्मत को, लेकिन वक्त निकल चुका होगा। क्योंकि अब भी अगर किसी को ये लॉजिकल पॉइंट समझ नहीं आते जो मैंने डिटेल से आपके सामने शेयर किए, तो वो दुनिया की किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। बस इतना याद रखें, एक कहावत है, अगर आप अपने ख्वाबों को ताबीर नहीं देंगे तो कोई और अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए आपकी खिदमत खरीद लेगा। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आप एक दफा प्रेजेंटेशन देखने के बाद उस शख्स को कांटेक्ट कर लें जिसने आपको इस फोरम पर रेफरेंस आईडी दिया था। वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब आपके पास कोई भी सवाल हो इस थीम से रिलेटेड, इस वर्किंग से रिलेटेड, इस फोरम से रिलेटेड, आप वो रिटर्न फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, वॉइस कॉल पर भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पे मौजूद ट्रेनर्स आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।